اگر آج ایک لسٹ بنائی جائے دنیا کے بڑے بڑے مسائل کی تو کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی ان مسائل میں سر فہرست ہوگی۔ انسانوں کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کے اپنے طریقے تبدیل کریں، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت کی تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ Red alert warning today about warming and climate change. Warmest year on record. Highest ever temperatures. آج سائنس پروف کر چکی ہے کہ کلائمیٹ بیلنس ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ایک ٹائم بوم کی طرح جس کی سوئی مسلسل ٹک 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 گردش میں ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے تبدیل نہیں کیے تو یہ صدیوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کی بات ہے کہ نیچر ہم سے انتقام لے گی۔ دنیا میں بھوک، تباہی، بربادی اور موت کا راج ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے کاربن ایمیشن کرنے والے ممالک میں چین، امریکہ، یورپی یونین، انڈیا، رشیا اور جاپان شامل ہیں۔ ان ممالک نے پیرس معاہدے اور COP فورمز کے تحت ایمیشن کم کرنے کے وعدے تو کیے ہیں، مگر امریکہ کو ہی لے لیجئے کہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں امریکہ اس معاہدے سے باہر نکل آیا تھا اور ایک بار پھر ٹرمپ اس معاہدے سے امریکہ کو نکال لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. آپ اندازہ کیجئے کہ اس معاہدے پر دنیا کی سنجیدگی ہے کیا۔ یہ ممالک ایک دوسرے پر تنقید تو کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی زیادہ دولت کمانے کی خواہش کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، ہیٹی، موزمبیق اور نائجیریا وغیرہ میں تباہی کس حد تک پھیل رہی ہے۔ کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان پاسٹ فیو ڈیکیڈز 4,10,000 لوگ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ ان غریب ملکوں کا سینکڑوں ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، مگر ان اموات اور اس نقصان کے بدلے سینکڑوں ٹریلین ڈالرز کمانے والے یہ ملک کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے سالانہ صرف 600 سے 700 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن کاربن لیول کو نیوٹرل کرنے کے لیے 3.5 ٹریلین ڈالرز پر اینم مسلسل 2050 تک اگر خرچ کیے جائیں تو ہی گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کاربن ایمیشن سے نمٹنے کی کوششوں کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ ہماری دنیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Heat wave conditions. The mountains moved like glaciers. Climate change. ارتھ سرفیس پر ایوریج ٹمپریچر 1980 سے اب تک 1.7 ڈگری فارن ہائٹس بڑھ چکا ہے۔ ویسے تو یہ کچھ زیادہ نہیں لگتا لیکن اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم انسان جو پولوشن ہر روز پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین پر ہر روز جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ہیروشیما پر گرائے گئے امریکی ایٹم بم پھٹنے سے پیدا ہونے والی ہیٹ سے 4 لاکھ گنا زیادہ ہے، یعنی 4 لاکھ لٹل بوائے ایٹم بم ہر روز۔ لٹل بوائے اس ایٹم بم کا نام تھا جو ہیروشیما پر امریکہ کی طرف سے گرایا گیا تھا۔ مگر یہ ہیٹ پرابلم نہیں ہے، یہ ہیٹ تو اصل پرابلم کا رزلٹ ہے، کیونکہ ہر روز سورج سے آنے والی ہیٹ کے مقابلے میں یہ ہیٹ بہت کم ہے۔ سورج کی کرنیں جب زمین کو چھوتی ہیں تو اپنے ساتھ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کے 100 ارب گنا زیادہ انرجی لے کر آتی ہیں۔ اس لیے اس ہیوج والیوم آف انرجی میں 1.7 ڈگری فارن ہائٹ کا اضافہ بہت بڑا اضافہ بن جاتا ہے۔ زمین کے ٹمپریچر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نیچر کے پاس ایک سسٹم موجود ہے۔ زمین پر آنے والی سن ریزز سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے زمین اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے اور پھر اس ہیٹ کا کچھ حصہ واپس اپر سرفیس میں بھیج دیتی ہے۔ ٹروپوسفیئر زمین کی سطح کے اوپر تقریباً 8 سے 15 کلومیٹر کا ایریا ہے اور زمین کے اوپر اس حصے میں موسم کی تمام تبدیلیاں ہوتی ہیں۔
अर्थ सरफेस से निकलने वाली ये हीट स्पेस में जाकर गायब नहीं होती, बल्कि अपर सरफेस में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे वाटर वेपर्स जो हम बादलों की शक्ल में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस इस हीट को अपने अंदर जज्ब करती हैं और फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज कर देती हैं, जिससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस तरह जमीन का टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरता। ऐसा ना हो तो जमीन इतनी ठंडी हो जाए कि यहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। जैसे हमें सर्दियों में स्वेटर या लिहाफ की जरूरत होती है, वैसे ही जमीन को भी ग्रीन हाउस गैसेस की एक पतली सी लेयर चाहिए ताकि जमीन का टेम्परेचर बैलेंस रहे। हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये सब कुछ एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो एक ऐसा निजाम है जिसमें जमीन की हर चीज आपस में जुड़ी होती है। दरख्त, दरिया, पहाड़, समंदर, जानवर, परिंदे, इंसान, मौसम, वक्त का गुजरना सब आपस में कनेक्टेड हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज का तवाजुन बिगड़ जाए तो पूरा सिस्टम मुतासिर हो सकता है। बारिशें पौधों और दरख्तों को बढ़ने में मदद देती हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो दरिया और समंदर में वाटर लेवल ठीक रहता है। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और जानवर पौधे खाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर ये सिस्टम डिस्टेबल हो जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी तो फसलें उगना बंद हो जाएंगी। बारिशों में कमी से पानी की कमी होगी और पौधों और दरख्तों और जानवरों की जिंदगी मुतासिर हो जाएगी। अगर पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पिघल जाएगी तो पानी की सतह बढ़कर दरिया और समंदर में तूफान पैदा कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना शुरू हो चुका है? क्योंकि अपर सरफेस में ग्रीन हाउस गैसेस अपनी नेचुरल लिमिट से ज्यादा हो गई हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट लाखों साल से तकरीबन 280 ppm थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, हम आराम से रह सकते थे। लेकिन जब इंसानों ने ज्यादा फैक्ट्रियां चलाईं, गाड़ियां चलाईं, जंगलात काटना शुरू किए तो इन गैसेस की मिकदार बढ़ गई। खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 280 से 422 ppm तक पहुंच गई है और जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा है और नेचुरल वेदर में चेंजेस शुरू हो गए हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस की ग्रेविटी इनको खला में नहीं जाने देती, इसलिए ये गैसेस हजारों साल भी कम नहीं होती। तो अब तक जमीन के टेम्परेचर में जो इजाफा हो चुका है, अब वो 1.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से और बढ़ तो सकता है, मगर हजारों साल तक कम नहीं हो सकता। और इसकी वजह से बेवक्त शदीद बारिशें हो रही हैं, खौफनाक तूफान आ रहे हैं और इनके दरमियान तवील खुशहाली से दुनिया का बहुत सा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। अगर ह्यूमन इमिशन को नहीं रोका गया तो क्लाइमेट डिजास्टर और सीवियर हो जाएंगे और दुनिया भर के ममालिक को डिस्टेबलाइज कर देंगे। मिलियंस ऑफ मिलियंस रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करेंगे और जमीन पर ज्यादातर इक़साम के पौधे और जानदार खत्म हो जाएंगे। पोलर आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे और दुनिया के कोस्टल सिटीज का बड़ा हिस्सा पानियों में डूब जाएगा। अगर पिछले 10 साल का ही डेटा देखें तो पता चलता है कि चीन, अमेरिका में खासतौर पर कैलिफोर्निया, इसके अलावा सोमालिया, इथियोपिया, कीनिया, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, शाम, ईरान, इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, जनूबी अफ्रीका और कनाडा जैसे ममालिक में लॉन्ग drought seasons experience किए गए हैं। The drought has taken over, turning once fertile lands into dust bowls. This is the worst drought to hit South Africa since 1982. The worst drought since 1956. At least 11 of those have been found within months. And it is not just giraffes that are affected, it is all wildlife. There's no pasture, there's no water for them. सिर्फ पाकिस्तान को ही ले लें, जिसका दुनिया में कार्बन इमिशन में हिस्सा सिर्फ 8% है, मगर क्लाइमेट चेंज की तबाही और बर्बादी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में 2010 से 2022 तक के सैलाबों में तकरीबन 4050 अफराद की हलाकत हुई और $100 अरब के करीब का माली नुकसान हुआ। 2010 में 2000 अमवात हुई और $23 अरब का नुकसान हुआ। 2014 में 200 अमवात हुई और बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज हुआ। 2020 में 150 अमवात हुई और एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ। 2022 में 1700 अमवात हुई और $40 अरब का नुकसान हुआ। ये तबाही
माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हुई, जिनमें गैर मामूली बारिशें, ग्लेशियर्स का पिघलना और दरियाओं की सतह का बुलंद होना शामिल था। डेटा देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में सैलाबों ने तबाही तो फैलाई, मगर पाकिस्तान में बारिशें माजी के मुकाबले में कम हुई। पाकिस्तान में 2014 से 2023 तक बारिशों में 10 से 15% कमी आई। माहिरीन के मुताबिक अगली कुछ दिहाइयों में बारिश में 20% तक कमी हो सकती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, पानी की फराहमी और फिजाई आलूदगी जैसे मसाइल मजीद संगीन हो जाएंगे और सैलाब भी मजीद खतरनाक हो जाएंगे। तो माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब भी आ रहे हैं और बारिशें भी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कहत साली भी बढ़ गई है। पाकिस्तान में 2011 से 2016 तक शदीद कहत साली ने ज़राई पैदावार को मुतासिर किया, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए। 2011 में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में पानी की कमी के नतीजे में $1 अरब का ज़राई नुकसान हुआ और लाखों अफराद खुराक की कमी का शिकार हुए। 2015 और 2016 में भी कहत की शिद्दत बढ़ गई थी, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध में, जिससे मजमूई तौर पर $500 मिलियन का नुकसान हुआ और हजारों अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हीट वेव्स की शिद्दत और तादाद बढ़ रही है। 2015 में कराची और जनूबी पाकिस्तान में शदीद हीट वेव ने 2000 अफराद की जान ले ली। पानी की कमी और हेल्थ इश्यूज ने एक सीवियर क्राइसिस को जन्म दिया। 2016 और 2018 में भी हीट वेव ने 500 अफराद की जानें लीं और एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा। 2020 और 22 में टेम्परेचर में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और कई फसलें तबाह हुईं। पाकिस्तान में स्मोग खास तौर पर लाहौर और दीगर इंडस्ट्रियल शहरों में एक सीवियर इशू बन चुका है, जहां पोल्यूशन लेवल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। 2015 से स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिससे सांस लेने की बीमारियां बढ़ गईं। अब हर साल स्कूल और ऑफिसेज बंद करने पड़ते हैं। 2020 के बाद से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया, जिससे हेल्थ, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। स्मोक से अगर निमटना है तो हुकूमत को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना होगा। स्कूल्स और कारोबार बंद करके स्मोक के इशू से नहीं निपटा जा सकता। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वो वक्त है जब हिस्ट्री में इंसान ने कभी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में शामिल नहीं की जितनी आज हो रही है। मजमूई तौर पर तमाम ग्रीन हाउस गैसेस का वॉल्यूम हर साल 3700 करोड़ टन है। अगर हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को जमीन के गिर्द फैला दें तो हमारे सरों पर इन गैसेस के 567 फीट गहरे बादल छा जाएंगे और जमीन पर सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो जाएगी, जिससे जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये तमाम गैसेस इस तरह एक साथ पूरी दुनिया को कवर नहीं करती, मगर कार्बन इमिशन की यही मिकदार रही तो ऐसा हो भी सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत।